Raju, thank you so much for joining us. Thank you so much for joining. Raju, मेरे को ना I am feeling very odd. पहली बार अपन we are doing online, right? I'm so Yes, used yes. to you sitting next to me and we talking. This is kind of feeling odd, but ठीक है, चलो. You are a busy man now. You are one of the most. No, not most busy. I'm not busy. no, no, I am you are one of the most wanted guests in. criminal. Yesterday somebody had told me that you are cold-blooded terrorist. मैं बोला this is too much यार. मेरी बेटी ना पढ़े इसलिए मैंने छुपा दिया उसको, हाइड कर दिया. Anyway, the topic we are here to discuss, Raju, is about Nikhil Bagle and the fact that Nikhil Bagle was almost he was hurt. There was physical violence against him. His car was broken. So, what is going on, Raju? What is going on? This is basically there is no rule of law, no law and order. There is a law in a book, but there is no order on the roads. So, so there is absolutely state-sponsored terrorism, and I think, as I said always, this is unilateral war against law-abiding citizen by central government and the BJP government, basically. And I don't know what they want to achieve and how they will achieve. How can you sponsor terrorism, Raju? It's a government, right? They ask every enforcement machinery to be passive when their gundas and goons and ruffian kind of kedar comes on the road and hit us. Means the same thing happened with me in Solapur, and it was very dangerous. I am alive. I myself and Ram Punyani ji alive, and you can show it in a and their picture. They photograph themselves, all BJ Yumo kedar. So they already threatened us to destroy this my speech and everything. And today I am alive just because of Sarfraz Ahmad and his friends and 30 progressive organization of Solapur and all Muslim brothers and sisters of Solapur. They encircled me, and police is very protective. But they were passive just because of government's order that BJUMO means Bharatiya Janata Yuva Morcha. Yesterday they took responsibility also, I think. So and that day also they took responsibility. They went to police station. In you show the cutting to the people in Solapur when I was myself and Ram Punyani we were supposed to talk there, and then we spoke ultimately. But before our speech, they came and they went to police station. They took a photograph with police. There, you can see their faces, and nobody would have been arrested there. And I don't know. Tell me something, Raju. बहुत लोग ये बोलेंगे कि क्यों? Why should you talk like this? क्यों? Why are you creating controversial topics? Why are you talking controversial? Controversial topic करोगे, लोगों को भड़काओगे, तो ये थोड़ा इधर-उधर हो जाएगा. What is your opinion about it? Why are you talking? So before 2014, you see, Sharad Pongshe has started that his famous play, Nathuram Godse Bolte, whatever. Nobody had objected. Some people objected, but किसी ने मारा नहीं ना उसको. He is safe and alive till this date. Now though he is hero because after 2000 means AD and BC like India is 2014, before 2014 and after 2014. It's divided in two era. So after 2014, Sharad Pongshe is hero. But when earlier I saw his play written by Pradeep Dalvi, so nobody had courage to touch him because police means whatever, Congress, even in Congress Rashtravari government or secular government or whatever you call it, progressive government, so-called. I don't call them progressive. They are not progressive at all. So my definition of progressive is altogether different than theirs. Okay, but still they are progressive if we call them progressive, because in today's context they are progressive, absolutely. So they were there, but वो कर सका play. उसने प्ले किया और चला. अब हम लोग क्या कर रहे थे मैं बताता हूँ. मेरी
कहानी बताता हूँ। मैं और राम पुनियानी जी क्या करने गए थे, कुछ किताबों का विमोचन करने गए थे, और मैं मेरा एक सब्जेक्ट था भारतीय जनता पार्टी की और आरएसएस की गुंडागर्दी और इन्होंने जो कुशासन लाया है उसके बारे में मेरा स्पीच था, वो सब्जेक्ट था। तो इन मनमोहन एरा there are thousands of speeches there about Manmohan Singh, 2G spectrum, and a number of things, and they were given, and nobody had objected about those speaker or speeches. और ये बट बात and पूछूं? one more thing I want to say. सॉरी In सॉरी सॉरी सोलापुर में हम लोग टीपू सुल्तान का 153 खत है, वो सरफराज अहमद ने ढूंढ निकाला जिसमें उसने मंदिर को पैसा दिया है। वो किताब हम विमोचन, मेरे हाथ से राम पुनियानी जी की किताब विमोचन होना था, तो इनका खून खौल गया, बोला टीपू सुल्तान हीरो बन रहा है। अब ये लोग गुंडे इतने मूर्ख है, मैंने भाषण में उस सोलापुर का भाषण आप सुनिए या सुनाइए आपके लोगों को, वो उसमें मैंने बोला, वो ऑन रिकॉर्ड है, यूट्यूब पे है। ये लोगों ने कोल्हापुर में जब दंगा किया तो कोल्हापुर में एक मेरे बहुत पसंद का बिरयानी हाउस है, वो बिरयानी हाउस में गए, बेचारे ने तोड़ा और अंदर एक फोटो थी औरंगजेब की सो कॉल्ड, वो उन्होंने फाड़ दी। तो फाड़ने के बाद मैंने जब देखा तो मैं बोला यार ये तो बहादुर शाह जफर की फोटो है, जो स्वतंत्रता सेनानी था, खुद उनके 2 बेटों को फांसी दिया। तो इनको मालूम भी नहीं है, ना इन्होंने धर्म ग्रंथ पढ़े हैं, ना इन्होंने इतिहास पढ़ा है, ना इनको भूगोल मालूम है हिंदुस्तान का। अखंड भारत के अफगानिस्तान और पाकिस्तान हिंदुस्तान में लाना है क्या तो आपको? this has happened in even in UPA ना. There was a cartoonist called Asim Trivedi, correct? Asim Trivedi. उनको भी तो पकड़ के जेल में डाला था कांग्रेस के लेकिन टाइम वो पे. बात से देखो, रूल ऑफ लॉ तो देखो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन आज जैसे मरे नहीं थे दैट टाइम व्हाट हैपेंड, अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ultimately abrogated that 66A controversial, and they set Asim Trivedi free. Umar Khalid is in jail for since last 5-6 years, and his even charge sheet is not ready. He is under trial, and in 77% under trial prisoners are there in a jail, and Supreme Court is speaking about, I mean Supreme Court Chief Justice on every Saturday and Sunday. But can I ask you then Colonel Purohit was in jail, his charge sheet was not made, तो उसके बारे में आप क्या बोलोगे? अरे कर्नल पुरोहित was known and very means defined a terrorist. He is saffron terrorist. बॉम्ब ब्लास्ट उसने और प्रज्ञा ठाकुर ने बॉम्ब ब्लास्ट का पूरा प्लान किया था, उसको बाहर छोड़ना। इसका मतलब अगर देखो अफजल गुरु का बारे में ये लोग बोलते हैं बहुत, दे स्पीक लॉट्स ऑफ थिंग अबाउट अफजल गुरु, लेकिन अफजल गुरु का कांग्रेस ने उसको फांसी चढ़ाया और उसको लेकिन दफन भी किया, किसी का पता नहीं। लेकिन अफजल गुरु का क्लियर कट कोई गुनाह है ऐसा दुनिया में अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाओ तो मुझे मिलेगा, तो मुझे बता दो। अब ये मैं बहुत कंट्रोवर्शियल बोल रहा हूं, लोग बोलेंगे अफजल गुरु का वो है, ऐसा कुछ नहीं है। आप कागज पे अगर पढ़ के प्रॉपर अगर न्याय करते हो तो कांग्रेस के टाइम में भी कुछ न्याय नहीं हो रहा था, लेकिन 73% डेमोक्रेसी थी। आज जो करीब 28% ही रही बची है जिसमें हम बात कर रहे हैं, जिस स्पेस में वी आर स्पीकिंग इन दैट 28% स्पेस, और वो 28% दे आर गोइंग टू डिलीट और अबॉलिश आफ्टर दिस 24 इलेक्शन। Purohit ko you are saying he is a terrorist, fair enough. A lot of people will. Court's order, it was court's order. It is written in his charge sheet that how he planned a terrorist attack, how he planned bombs and all ammunition. चार्ज शीट तो उनका बनाया नहीं गया था ना। नहीं वो उसका जो एफआईआर है उसमें सब लिखा हुआ है उसने क्या क्या किया। एंड चार्ज शीट क्यों नहीं बनाया? अरे चार्जशीट बनाने में देरी लगी क्योंकि उस टाइम के होम सेक्रेटरी आरके सिंह थे, वो अभी बीजेपी में है, आगे का प्लान था एक। और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस इतना इनर्शिया से भरी हुई थी दूसरी टाइम में सरकार यूपीए की कि उनको लगता था जिंदगी भर उनकी सरकार रहेगी तो आराम से बनाएंगे चार्जशीट। प्रज्ञा ठाकुर की तो देखिए अब वो बीमारी की हालत है इसलिए बाहर आई है, और बाहर वो लोकसभा में चुन के भी आई दिग्विजय सिंह को हराकर। लोगों का भी इसमें दोष है, और ऊपर से वो अब क्रिकेट भी खेलती है कई बार, और कुछ गिल्ली डंडा गरबा सब चलता है, और वो जब कोर्ट का डेट आता है उस दिन बीमार हो जाती है, और वो उसमें कुर्सी पे बैठती है, वो जो हम प्लेन में बूढ़ों के देते हैं ना वयस्क लोगों के लिए, वही।
आई वॉन्ट टू आस्क यू, ये लाइन ड्रॉ होना चाहिए कि भाई हम पब्लिक फंक्शंस में क्या बात कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, किसका सेंटिमेंट हर्ट करते हैं, क्यों सेंटिमेंट हर्ट करते हैं, एक लाइन होना चाहिए कि आपके हिसाब से फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंतर्गत हम बोलने की आजादी हमको मिलनी चाहिए और लोगों को टॉलरेंट होना चाहिए ये समझ के कि भाई इनकी बोलने की आजादी है। सो ये जो है ना कि बोलने की आजादी को मिसयूज करना है, कुछ भी बोलना, ये वर्सेस drawing that line. How do you define this? What is your view on this? हर्टिंग सेंटिमेंट्स, मुझे लगता है कि इंडियन सेंटिमेंट ऑफ हर्टिंग, इंडियन सेंटिमेंट हर्टिंग कमीशन ने अपॉइंट करना चाहिए अभी, और उसको एक कमीशन में सारे बीजेपी के लोग होने चाहिए और उनको तय करना चाहिए कि क्या बात करनी है क्या नहीं। देखो सुजीत, बात समझो, तुम बात यह है कि तुम शाकाहारी हो मांसाहारी हो, इस पे भी उनका प्रॉब्लम है। तुम लिव इन रिलेशन में रहते हो या नहीं रहते हो, इस पे भी उनका प्रॉब्लम है। यानी तुम्हारे किचन में भी वो आएंगे, तुम्हारे बेडरूम में भी आएंगे। उनकी सेंटिमेंट इतनी नाजुक हो गई है 2014 के बाद कि किसी से भी उनको दर्द होता है। यानी कोई लड़का लड़की के साथ घूमे तो भी उनको बुरा लगता है। तो सेंटिमेंट हर्ट के बेसिस पे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं हो सकती इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हर्टिंग माय सेंटिमेंट। सेंटिमेंट तो हर्ट होनी ही है जब आपका विपक्ष या आपके खिलाफ जो आदमी है वो लिखेगा, जैसे कि मार्क्स के खिलाफ किसी ने लिखा कि फिलोसॉफी ऑफ पॉवर्टी किताब लिखी, तो मार्क्स ने उसके ऊपर किताब लिखी पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी। तो वो इतनी भयंकर उस पर आलोचना है उसमें, लेकिन वो लंदन में था इसलिए लिख सका। समझिए आप बात। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच की कोई बाउंड्री नहीं होती। हाँ, आप माँ बहन से गाली गलौज करो तो वो नहीं करनी चाहिए, उसके लिए सीआरपीसी है ना, कोड आईपीसी है ना। आपकी फीलिंग हर्ट होती है इसलिए मैं बात नहीं करूं, ये तो हो ही नहीं सकता। नहीं तो कमीशन अपॉइंट करना पड़ेगा, हर्टिंग सेंटिमेंट्स बीजेपी कमीशन। आई वांट टू गो टू द टॉपिक ऑफ भारत रत्न, जिसके बारे में निखिल बात कर रहा था पूना में। अभी ये बताएं, ये भारत रत्न अवार्ड्स जो है, hasn't it been used for political gains? 100%, लेकिन this is not new. Since Indira time, it's problematic. Means Bharat Ratna and all these awards are, I think, शोकेस में ही बेहतर दिखते हैं, क्योंकि जनता पार्टी ने उसको बैन किया था, याद है आपको? जनता पार्टी ने ये सारे अवार्ड्स बैन किए थे, वो इसी वजह से किए थे कि किसी को भी दे देते हैं, वो उनका भी आरोप था। तो ये इस बार दिया है, लेकिन इस बार तो केला ले लो केला, पेरू ले लो अमरूद ले लो अमरूद, ये टाइप पे दिया है भारत रत्न। तो बात ये, और सबसे बड़ी बात है, चरण सिंह जो है वो बहुत बड़े संघ के आलोचक रहे हैं, चौधरी चरण सिंह। उनके जो अभी वंशज है उनको मालूम नहीं, जयंत चौधरी को मालूम नहीं है वो क्या है, क्या थे। शायद अपने ही लोग अपना ही लोगों के बारे में पढ़ते नहीं, तो धर्म ग्रंथ कहाँ से पढ़ेंगे, और ऊपर से मैं जो बोल रहा हूँ किताबें तो दूर की बात। तो कर्पूरी ठाकुर इनके आलोचक रहे हैं, ब्राह्मणवाद के आलोचक रहे हैं कर्पूरी ठाकुर। तो बात यह है कुल मिलाकर कि ये भारत रत्न जो है और ये पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण तब तक भारत में नहीं देने चाहिए जब तक भारत में लोगों की सरकार नहीं आती। और लोगों की सरकार, मैंने जब तक जानता हूं, नेहरू जी की सरकार और राजीव की सरकार, दो ही सरकार थोड़ी बहुत लोगों की थी। राजीव की मैंने इसलिए कहा कि राजीव गांधी के पास 404 सांसद थे, फिर भी उन्होंने बोफोर्स का पूरा वो करने दिया, जेपीसी अपॉइंट किया और राजगद्दी छोड़ी। अगर वो चाहते तो गर्भ में ही ये भारतीय जनता पार्टी को कुचल डालते, जैसे ये लोग आज कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 404 का बहुमत होने के बाद भी राजीव ने नहीं किया, तो उसको लोकतंत्र कहते हैं। उन्हें बोलने दिया, अरुण जेटली को अपॉइंट किया जेपीसी पे, और जेपीसी किया और उन्होंने अपनी गद्दी छोड़ी। तो वो और नेहरू का टाइम, ये दो टाइम में भारत में आजादी रही करीब करीब, यानी समझ लीजिए 80%। बाकी तो भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण मैं खुद जानता हूँ। ओवरऑल it's a consistent, this all awards are consistent political activity। और बीच में इक्का दुक्का को दे देते हैं, गरीब आदमी है, वो अम्मा किधर से शर्ट बांट रही है, उसको बुलाया, पद्मश्री दे दिया, और उसका चप्पल पहन के नहीं आए, ये सब दिखावे के लिए, शोकेस के लिए दो चार लोग जरूरी होते हैं, वो दिखा देते हैं। वरना ग्राहम स्टेन्स और
उसके बच्चे और बीवी को जिनको जला डाला, उसमें एक आरोपी था वो सारंगी, वो मोदी सरकार के कैबिनेट में मिनिस्टर थे कुछ साल के लिए अभी। तो ये लेवल पे ये लोग का हुआ है। और अभी गिरीश प्रभुणे साहब जो मेरे अच्छे उनके संबंध है, लेकिन वो चातुर्वर्ण का समर्थन करते हैं, उनको भी मिल गया है पद्मश्री। तो कोई ऐसा कैटेगरी नहीं है, किसी को भी मिल सकता है और किसी को भी। कितने डिजर्विंग No, कैंडिडेट no, है। Raju, coming back to the point, मुझे एक चीज बताएं, why PV Narasimha Rao? PV Narasimha Rao was an instrumental in a Babri demolition. He was passive prime minister while Babri was demolished. That was his biggest contribution for BJP RSS family cult. Though he was a Congress person and Congress leader, he was a very soft towards this Hindutva, and they demolished Babri Masjid while they verbally promised Narseh Rao, Advani and company, and Kalyan Singh was a chief minister of Uttar Pradesh, and at that time he was absolutely passive. वो पूजा कर रहे थे, ऐसा बोला उन्होंने. That was biggest puja happened in since independence in इंडिया. प्राइम मिनिस्टर का पूजा सबसे महंगा वही था. तो अभी पूजा करते प्राइम मिनिस्टर, लेकिन वो महंगा नहीं उतना जितना वो महंगा था पड़ा आज तक. So he was instrumental and he was passive, and he was actually passively supporting complete RSS family. And today I feel, and I really feel hurt about Muslim fellows, means my Muslim brothers and sisters, जो उन्होंने प्रधानमंत्री के नाते नरसिंह राव पे विश्वास रखा. Narseh Rao was a person who one of the architect of Babri demolition. So उनको भारत रत्न क्या, उनको विश्व रत्न भी दें आरएसएस के लोग तो कम है. मुझे तो अभी लगता है कि आरएसएस के हेडक्वार्टर में जाके भाषण देने के लिए प्रणव मुखर्जी को वो और कुछ नहीं दे सकते हैं, इसलिए नहीं दे रहे हैं, नहीं तो दे देते. नहीं, प्रणब मुखर्जी गॉट भारत रत्न इन 2019. नहीं, भारत रत्न मिल गया, इसलिए मैं और कुछ देना चाहते हैं तो दे सकते हैं. मैंने कहा जो आरएसएस, देखिए, सी इफ यू टुमारो यू स्टार्टेड प्रेजिंग आरएसएस ना, you said just now, you said ki I am not deserving candidate for Padma Shri. I'll bet if tomorrow you start praising Modi, tomorrow you start praising BJP, and tomorrow you fake news and Godi news, then in coming months, 3 or 4 months, you will get Padma Vibhushan, not Padma Shri. That's how it works. That's how it works, man. But tell me, Raju, isn't it true to even Congress? Congress ने भी बहुत जनों को पद्मश्री दिया है, बहुत जनों को पद्मश्री दिया. Sachin Tendulkar is the most undeserving candidate. Sunil Gavaskar was a deserving candidate for Bharat Ratna in cricket, but he got. So I agree. देखो, कांग्रेस ने जड़े अपनी नरक तक ले गए, इसलिए इनको आज स्वर्ग दिख रहा है, इनके पेड़ को, बीजेपी को. अच्छा राजू, let's come closer to home. What is happening in Maharashtra, Raju? You know, BJP MLA shot Shinde, Shiv Sena worker, another person. Abhishek Ghosalkar was shot yesterday, day before yesterday. So great loss. This is my personal loss also, because we were living in Daisar. The family is very friendly family, very nice family actually. उससे भी बड़ी insensitive बात मुझे, जिसके बारे में रिस्पेक्ट है और लोग इसके लिए मुझे गाली देते हैं, देवेंद्र फडणवीस. उन्होंने अभिषेक घोषालकर के फैमिली के प्रति संवेदना जताई भी नहीं. वो ठीक है, मैं समझ सकता हूं, उनका पर्सनल चॉइस है, लेकिन एक यंग गर्ल है, उसकी बच्ची है, वो रो रही है, पापा, उसके वाइफ रो रही है, माँ रो रही है. एक ह्यूमन स्टोरी है ये, बहुत ही दर्दनाक. और ऐसा बड़ा कुछ बुरा किया नहीं है उन्होंने लाइफ में. अभिषेक तो बस अभी जब यानी उसकी लाइफ स्टार्ट हो रही थी पॉलिटिक्स, उसके ऊपर गृह मंत्री के नाते देवेंद्र जी ने ये कहा कि कुत्ता भी गाड़ी के नीचे आए तो मुझसे रेसिग्नेशन मांगेंगे. ये फिर कांग्रेस के टाइम में 26/11 हुआ था, तो रामगोपाल वर्मा को विलासराव देशमुख सिर्फ ताज में लेके गए थे, तो रिजाइन मांगा था इन लोगों ने, और उन्होंने दिया था. वो नैतिकता कहाँ गई इनकी? मुझे नहीं अपेक्षा कि देवेंद्र रिजाइन करे, क्योंकि वो फिर तो ये दोनों बाकी जो उप मुख्यमंत्री, एक और एक मुख्यमंत्री मिलके और भी ये बढ़ा सकते हैं.
देवेंद्र है इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन बचा हुआ है, लेकिन उनकी जो भाषा है वो भाषा आरएसएस की वो है, भाषा उनकी अपनी नहीं है, आरएसएस और बीजेपी की है। कि गाड़ी के नीचे कुत्ता और अभिषेक घोषालकर की मृत्यु सेम है क्या? आप सोचो ना यार, सोच के भी कांटा आ जाता है मेरे हाथ पे। यानी मुझे कल ये लोग मार दें, समझ ले, हो ही सकता है, ये तो सोलापुर में ही हो जाता, या निखिल वागले और ये विश्वम्बर चौधरी, असीम सेरो जैसे कोई मर जाता, तो गृह मंत्री यही कहेंगे कि गाड़ी के नीचे कुत्ता आ जाए तो भी मुझे रेसिग्नेशन मांगेंगे। तो हम इंसान की कोई कीमत नहीं है क्या? तो हम नागरिक नहीं है इस देश के? तो हम ये संविधान सब झूठ है। टेल मी, अगर आप बोल रहे हो कि देवेंद्र फडणवीस इज एडमिनिस्ट्रिंग एंड अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है और वगैरह, इफ आज महाराष्ट्र बचा हुआ है बिकॉज ऑफ हिज एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये जो प्रॉब्लम हो रहा है वो पूरा तो होम डिपार्टमेंट में ही हो रहा है। ये जो मर्डर्स हो रहे हैं वो उनके डिपार्टमेंट में हो रहे हैं, बाकी सब में उतना कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो ये The problem is there is verbal orders, I think, from Delhi High Command कि भारतीय जनता पार्टी या हमारी परिवार में कोई भी कुछ भी करता है तो बिना पूछे उसको कुछ नहीं करने का। सो दैट फ्रिंज एलिमेंट करके हम लोग बोलते हैं। जैसे कि देखो मैं एक बात बताता तेरे को, वेरी वेरी सिंपल थिंग ना। ये धर्म आक्रोश मोर्चा निकाला था बीच में इन्होंने दंगे फसाद करने के लिए, लेकिन हो नहीं, उसमें ही वो बहादुर शाह जफर की चित्र फाड़ा गया। ये बीजेपी स्पॉन्सर्ड था, बीजेपी आरएसएस अलग अलग संगठना इकट्ठी होके किया था इन्होंने। तो वो धर्म आक्रोश मोर्चा में क्या, हिंदू खतरे में, लव जिहाद, ये वो बहुत बातें। अब जितने गोली मारी, गोली किस में चली? गायकवाड़ से चली कहां? पुलिस थाने में। मारा किसको? गायकवाड़ को। तो हिंदू खतरे में कहां आ गया? मुसलमान के हाथ से। यहां धर्म कहां से खतरे में आ गया? अब अभिषेक घोषालकर को मारा, वो किसने मारा? वो मॉरिस नरोना ने मारा। तो मुसलमानों के प्रति जो नफरत फैलाने की इनकी जो षड्यंत्र है, इसमें आप जितने भी गोली कांड हुए हैं महाराष्ट्र में, उसमें कहां एक भी मुस्लिम दिखाओ मुझे। और एक्चुअली मुस्लिम्स लोगों ने 2 लोगों की जान बचाई है। और ये धर्माक्रोश मोर्चा निकाल के मिलिंद एकबोटे से लेके संभाजी भिड़े से लेके ये लोग सब लगा रहे हैं कि बहुजनों के बच्चों को हिंदू मुस्लिम पे लगाए हैं, और इनके जो बच्चे बड़ों के हैं वो सारे विदेश में छुपा के रखे हैं। जब वहां अगर लोग कहें कि ईसाई हमारा धर्म है, तुम हिंदू वापस जाओ, तो बैंड बज जाएगी इनकी। या फिर गल्फ में 57 देशों में जो लोग खाने पैसा मिलता है उनको और यहाँ भेजते हैं फॉरेन करेंसी, उनको वो देश इधर भेज दे तो इनको पता चल जाएगा। राजू, एक बात पूछूं मैं, अब हम ये नहीं सोच रहे कि सब जो गलत हो रहा है वो सेंटर कर रहा है और स्टेट नहीं तो एकदम परफेक्ट है। Isn't that also what you're saying is not necessarily correct? मैं बिल्कुल ये मानता नहीं हूँ, स्टेट भी गलत कर रहा है। देखो, सुपीरियर्स ऑर्डर कभी भी क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का डिफेंस नहीं हो सकता। तो ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, तो इसकी जिम्मेदारी एकनाथ शिंदे पे आती है, अजित दादा पवार पे आती है और देवेंद्र फडणवीस पे आती है। क्योंकि क्राइम अगेंस्ट आर्टिकल 4 पढ़ो आप न्यूरेमबर्ग ट्रायल का, उसमें लिखा हुआ है कि क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जब होती है, या वॉर क्रिमिनल्स आप होते हो, या फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम करते हो, तो आप ये कहकर बच नहीं। इसी के ऊपर हिटलर के जनरल को विलियम काइटल को फांसी दिया था, क्योंकि उसने कहा था कि, और एक्चुअली उसका साइको एनालिसिस किया गया है, और साइको एनालिसिस में आया उसका रीढ़ का हड्डी नहीं है, रीढ़ का हड्डी इज इक्वल टू जेलीफिश। फिर भी उसका वो, और रियली यानी साइको एनालिसिस में ये भी कहा गया कि वो रियली जो हिटलर से आता है, फ्यूरर से आता है, वो अमल करता है, तामीली करता है उसकी। Still, he was hanged, executed, because there is a principle called defense. My defense is my superior's order. I cannot deny superior's order. I cannot violate superior's order. And that cannot be a defense in the case of crime against humanity. And ये लागू होता है एकनाथ शिंदे पे, ये लागू होता है अजित दादा पवार पे, ये लागू होता है देवेंद्र फडणवीस पे। इसमें मुझे कोई शक नहीं।
ये लागू होता है हर एक इम्प्लीमेंटेशन एनफोर्समेंट ऑफिसर पे भी। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट पे होता है, इनकम टैक्स के सारे अधिकारियों पे होता है, सीबीआई के सारे अधिकारियों पे होता है, एनआईए एनएसए पे सारे अधिकारी। देखो आज समीर वानखेड़े को बुक किया ईडी ने, उसने बिना वजह, बिना कोई गुनाह, बिना कोई ड्रग उसके जेब में था ना, कंज्यूम किया था, तो शाहरुख के बेटे को 1.5 महीना जेल में रखा। यार 1.5 महीना बहुत होता है। ये क्रिमिनल क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी नहीं है, आप किसी के अंदर की इंसानियत मार देते हो। सिस्टम फ्लॉज नहीं एविडेंटली दिख रहा है, क्योंकि हमने एक बार ये इमरजेंसी में देखा था और ये अभी वापस रिपीट हो रहा है। सिस्टम फ्लॉज मतलब आपको ये इन्फोर्समेंट एजेंसीज को बेंड करने को बोलो तो क्रॉल करता है पॉलिटिशियन के सामने। ये हम अभी लाइक आई टोल्ड यू इमरजेंसी में एक बार देखा था, हम अभी वापस देख रहे हैं। Isn't it time we take control and do something to improve our system? Isn't it time? Who is going to take control? The government you choose, I guess. You are saying they are part of the problem. They are not solution of the problem. They are part of the problem. You are saying whatever you are saying, crisis in chaos. It's because of government. We are living in crisis and chaos just because of government, and you are asking to take matter in their hand. Means ask them to take matter in their hand. Means the matter already is in their hand. They want it to go like this. So they are part of the problem. They are doing and they are supporting crime against humanity, lynching, for example, and the derogatory remarks again and again in public place. Raja Singh, Sharad Pongse, n number of people, they speaks, even Nitesh Rani, even they speaks against Muslim openly and said हमारा आदमी तो बॉस बैठा है उधर सागर बंगले पे, हमको कुछ नहीं हो सकता। This is a failure of system. This is a failure of fundamental rights and fundamental protection from your constitution. तो हाथ में किसको लेना है? हाथ में जनता को लेना पड़ेगा। आप सड़कें सुनसान हो जाएगी ना, जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती, ऐसा कहा था लोहिया जी ने। और ये भी कहा था कि सड़कें जब सुनसान हो जाती हैं तो संसदें आवारा हो जाती है, जो हो गई। अब जो जिसको प्राइज मिला वो देखो, वो आप पूरे हिंदुस्तान का देखो। गुजरात केडर से आया, सोहराबुद्दीन केस से क्लियर किया, वो कहीं और बैठा है। अडानी के पक्ष में जो दिया, वो मानवता आयोग का अध्यक्ष बन गया जज। जिसने इनको फ्री हैंड दे दिया तो उसको केरला का राज्यपाल बनाया। I mean, these are allegations. There is nothing to prove whatever we are saying. What prove? I'll tell you what to. I'll prove it. Okay, this is clear-cut case of quid pro quo. So मैं यौन शोषण का मेरा आरोप मेरे सामने मेरे ही बेंच पे सुनूं, मैं अपने आप को बरी कर दूं, मैं कहूं कि बाबरी जहां गिरी वो गुनाह था, मैं कहूं कि उसका कोई सबूत नहीं है, और फिर भी मैं कहूं लोगों की आस्था है इसलिए राम मंदिर वहां बना दो। ये जस्टिस है? ये जज है? ये सुप्रीम कोर्ट है? और बनाने के बदले में मैं रिटायर होता हूं, उस दिन इतना आरोप यौन शोषण के गंभीर जिससे मैंने खुद को बरी किया है और सिर्फ बाबरी का किया, दूसरे दिन 8 दिन में मैं सांसद बन जाता हूं सत्ता पक्ष का। इज दिस नॉट क्विड प्रो क्यो? कोई नैतिकता है कि नहीं? अगर कोई दूसरा नैतिक आदमी होता तो कहता कि मैं कम से कम सांसद तो नहीं बनूंगा, इतना किया पाप काफी है। लेकिन वो सांसद ही बना, तो आप बोल रहे हो कि इसका कोई एविडेंस नहीं। मैं 10 एविडेंस हर जज का दे सकता हूं। अब मिश्रा, अरुण मिश्रा, उन्होंने अडानी का जितना फायदा कराने वाले ये दिए, उसके रिपोर्ट पढ़िए आप, पूरा उसका जजमेंट पढ़िए। यानी पूरा जजमेंट पढ़ने के बाद आप ये कंक्लूजन पे एज अ कॉमन पर्सन आ जाते हो कि ये अडानी के पक्ष में कैसे जा सकता है। गया और वो मानव अधिकार के चेयरमैन बन गए, हेड बन गए। इज नॉट क्विड प्रो क्यो? तो आप एलिगेशन विदाउट वो मैं लगा नहीं रहा हूं भाई। सर, आई ऑलवेज रिस्पेक्ट सुप्रीम कोर्ट, आई रिस्पेक्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आई रिस्पेक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन वो जब अपनी राह पे चले तब, जो संविधान पे चले तब। अब ये लोग गूंज की तरह व्यवहार करेंगे तो हम लोग संविधान की तरह बात करनी पड़ेगी ना। हाँ, लेकिन राजू, isn't it also fact that हम ओपिनियंस को, हम जजमेंट्स को, हम एक्शंस को बहुत
पर हमारे पर्सपेक्टिव से देखते हैं, isn't it? If supposing the judgment is pro people that that possibly a section of the society is supporting, we say the judgment is good. If it is against the people a section of society is supporting, we say the judgment is bad. Isn't that also a fact in a way, Raju? I mean, being fair and being honest. मैं उदाहरण देता हूं. I'll give you an example. Giving straw to 85-year-old father who is suffering from Parkinson's is not in a jurisdiction of Supreme Court, isn't it? हाँ? But Yes. राम मंदिर की आस्था की वजह से उधर बनाना चाहिए. That is in jurisdiction of Supreme Court. In 5 years, you are hearing Umar Khalid case under trial. Huh? And you are not giving him bail, which is his fundamental right. Is this a crime or not? Means not Umar It Khalid. is. Who are you blaming it for? This has been happening since time immemorial. Injustice, system lacunae have been happening through and through, isn't it, Raju? Come to think of it, Nehruvian time se hote aa raha hai. See, percentage of this going very high. See, percentage is important. We were free 73% according to international agencies in that Manmohan time. I mean, not fully free. Means 100% freedom वगैरह नहीं, मतलब like Sweden वगैरह. लेकिन but 73% freedom is okay. Then today we are 28% free. That difference means I am saying कि Umar Khalid is not either. There are n number of Sanjeev Bhatt is there. There are people in the row. Raman Singh is a freelance journalist. You read about him. जेल का आईना नाम की किताब है उसकी, शायद या जेल खाने के आईना पढ़िए. वो फिर से जेल में ही है भागलपुर के, अब उसको शिफ्ट किया. तो उसको किस लिए अंदर रखा है वो मालूम नहीं. सिद्दीक कप्पन उसको इतना श्योरिटी गारंटी. और अर्नब गोस्वामी को जब जेल में डाला तो पर्सनल लिबर्टी के नाम पे रात में वो चीफ जस्टिस ने उसको सुबह तक छोड़ दिया. बोला ये कितना बड़ा अन्याय संविधान. ये तो दिखता है यार. यानी ये जो बिकता है वो दिख रहा है. जो बिक रहा है ना वो सब दिख रहा है मार्केट में. और आप बोलते हैं बोलो नहीं. अगर हम नागरिक नहीं, वी द सॉवरन पीपल ऑफ दिस कंट्री, हम नहीं बोलेंगे. दो वी आर टायर्ड, वी शुड स्पीक. दिस इज आवर ड्यूटी, दिस इज आवर ऑक्यूपेशनल हैजार्ड. किसी को बुरा लगे तो लगे. पर्सनल तो नहीं हुआ. मैंने कुत्ते का बात तो नहीं किया कि गाड़ी के नीचे आया किसी के बच्चे के बारे में. मैंने सिर्फ संविधान के बारे में बोला और बिलो द बेल्ट नहीं बोला. तो पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में बोला. समझना है तो समझ ले ये लोग, नहीं तो देखो ज्वालामुखी के ऊपर बैठे हुए हैं, एक दिन फट जाएगा. राजू, लास्ट क्वेश्चन, आर यू स्कैर्ड? यस, आई एम स्कैर्ड. इसलिए मैं निर्भय बनो में नहीं जाता एक्चुअली, क्योंकि मैं डरता हूं. और मैं अक्सर कोशिश ये करता हूं कि मेरे डर को, जिस बात का मुझे डर लगता है उसका मैं सामना करूं. मैं इतना ही कर सकता हूं और आप भी उतना ही कर सकते हैं. मैं ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत ही मैं बेडर हूं. मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता किसी बात का, सिस्टम का, किसी का, मोदी जी का. और बिंदास आपको भी नहीं डर लगना चाहिए. झूठ है. मैं सबको डरता हूं. मैं पुलिस को डरता हूं, मैं एनफोर्समेंट एजेंसीज को डरता हूं, मैं भगवान को डरता हूं, मैं शैतान को डरता हूं, मैं सबको डरता हूं, लेकिन सबसे भिड़ता हूं. इतना ही मनुष्य कर सकता है. मनुष्य ये दावा करे कि वो बेडर है, वो किसी का खौफ नहीं, उसको डर ही नहीं है, तो वो झूठ बोल रहा है. मैं झूठ नहीं बोल सकता. मैं ये भी झूठ नहीं बोलूंगा. मैं लोगों को कहूंगा कि आप डरो मत, लेकिन डर लगेगा. और ये स्वाभाविक है और ये मनुष्य का है. मुझे भी लगता है, आपको भी लगेगा, लेकिन उसका सामना करो. यही वक्त है जब डर का सामना, आपकी चरित्र की परीक्षा होगी और आपको इसमें जीतना पड़ेगा. अगर आप हार भी गए तो यू आर राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री, इतना तो कम से कम लिखा जाएगा. और तुम्हारे परपोते कहेंगे नहीं कि हमारे बाबा ने या हमारे दादा ने या हमारे परदादा ने रिश्वत ली थी और वो छूट गया और फिर हम सांसद बन गए. राजू, very well said. Very well said. Raju, thank you so much. As always, what a pleasure talking to you. I wish we were sitting together over a cup of tea and then talking. But yes. well, Next time we'll do that. Next time we'll do that. Thanks a ton, Raju. Thanks a ton. Thank you. Roti Bank Foundation has served over 1.5 crore meals to needy kids. Feed a child with just ₹40. Please donate generously. Visit rotibankfoundation.org.
Join hands to build a healthy India. Stay ahead with our cutting-edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.